السلام علیکم. آپ کو پتا ہے کہ فاروق ستار نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی الطاف حسین کو غدار نہیں کہا. ذرا سنیں کیا کہا فاروق ستار نے, آپ کو میں سناتا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی الطاف حسین کو غدار نہیں کہا. کہنے کا مقصد ہے کہ نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے نا, ایم کیو ایم کے بانی کو غدار نہیں کہا. انہوں نے کہا ایک ایک لفظ کا حساب لیں گے کہ نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے نا, ایم کیو ایم کے بانی کو غدار نہیں کہا. انہوں نے کہا ایک ایک لفظ کا حساب لیں گے. نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے نا, ایم کیو ایم کے بانی کو غدار نہیں کہا. انہوں نے کہا ایک ایک لفظ کا حساب لیں گے. تو سارا معاملہ انہوں نے غدار کیوں کہنا, غدار کیوں کہنا, حالانکہ نواز شریف کی جب سیاست کو سوٹ کرتا تھا تو وہ ہر ایک کو غدار کہتے تھے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو, چاہے وہ الطاف حسین ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو. نواز شریف نے کیا کہا ایم کیو ایم کے بارے میں پہلے, اب بھی نہیں, بہت پہلے جب انہوں نے یہ کہا تھا, جب ابھی وہ یعنی ان کی ایم کیو ایم سے بن نہیں رہی تھی, تو کیا سنیں ذرا. ایم کیو ایم کو کلیئر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو, اور پاکستان کے عوام میں یہ بھی ثابت کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یا وہ اپنے ملیٹنٹ ونگز کے ذریعے سے, عسکری بازو کے ذریعے سے وہ دہشت گردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی, معاف کیجیے گا میں بات سچ کرتا ہوں, دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی, اور کراچی کا امن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایم کیو ایم کا وجود ہوا ہے. یہ کیسا وزیر اعظم ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. یعنی جب اپوزیشن میں ہو تو انہیں کہنا ہے ایم کیو ایم دہشت گرد ہے, اور ان کی یعنی جب وہ آئے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو دہشت گردی شروع ہو گئی. لیکن اب جب خود ان کی ضرورت ہے تو پرویز رشید کو بھیج کے ان کو میسیجز دے رہے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تاکہ ایم کیو ایم بچی رہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں. پتہ نہیں یہ کس قسم کا کام ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما جو ہیں وہ میاں صاحب کو اور میاں صاحب کے بھائی کو برا بھلا کہتے رہیں, اس کا جواب نہیں دے سکتے. میں سناؤں گا نہیں بار بار وسیم اختر نے جو الفاظ استعمال کیے, کیونکہ اس میں مریم کے لیے بھی انہوں نے کی ہے, اور وہ بھی بہرحال ہماری عزت بھی ہیں, سب کی عزت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس لیے میں ابھی وہ نہیں سنا رہا, لیکن ذرا کچھ احساس کریں, کچھ خیال کریں. صرف اپنا افسار عالم کے تھرو مجھے نوٹسز نہ بھجوائیں, اور جواب دیں عوام کو کہ وہ کون سے 120 پالیٹیشنز ہیں جس میں 2 کابینہ کے وزیر بھی ہیں, ڈیلی ٹائمز کی سٹوری کے مطابق, روزنامہ پاکستان کی سٹوری کے مطابق, کہ جن کے اوپر جنرل راحیل نے آپ کو کہا ہے کہ یہ انتہائی کرپٹ ترین لوگ ہیں اور ان کے اوپر ایکشن ہونا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب ایکشن کرنے سے گریز کر رہے ہیں, اور قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں, شہری ہیں, جس میں سیلیبریٹیز ہیں, ہمارے میجر سیلیبریٹیز ہیں, ان کو ہراساں اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں حمزہ علی عباسی, عارف حمید بھٹی اور سعید قاضی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پہ آئے. یہ بڑی کلیئر ایک اب ڈائریکشن ہے جناب کہ اتنے دن سے جو ایم کیو ایم کا پھڈا ہو رہا ہے, دراصل یہ مسلم لیگ نون کے ایما پہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے, اور وہ کوئی اس کے لیے حل بھی نہیں دیا نا انہوں نے. اس لیے ہو رہا ہے تاکہ پینما پیپرز کے اوپر اور حکومت کی جو کرپشن ہے اور بیڈ گورننس ہے اس کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے. ہاں, لیکن میں ان کی ایک بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں, پی ایم صاحب نے جو ایم کیو ایم کے بارے میں کہا, مگر ایک بات انہوں نے نہیں بتائی کہ یہ بھی ضیاء الحق کے تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا. یہ بات انہوں نے کی جب وہ اپوزیشن میں تھے, تب ظاہر ہے انہوں نے, اور یہ ایز اے پرائم منسٹر نہیں کی, سوری, اب وہ بہت سالوں سے پرائم منسٹر لیکن بہرحال جس کیپیسٹی میں بھی کی انہوں نے, میرے خیال میں یہ ایک جیسے ہم پروگرام میں آپ کے بات کر چکے ہیں کہ جو 3 بڑے اہم تحفے تھے, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاناما اس طرح سے از گوئنگ ٹو گو اوے. جس طریقے سے یہ پیس آف لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں کہ جو پیچھے ہے اس کو ختم کریں اور آگے سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو, جس طریقے سے ہمیشہ یہ کچھ سال 2 4 10 سالوں بعد ایک ایمنسٹی کی اسکیم لے آتے ہیں کہ جناب پچھلے کر لیں ان کو, تو میرے خیال میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. بہت سے ایشوز ہیں, بہت سارے پیسے, وہ قانون بھی جو بلکہ بتائیں گے ہمیں آپ, وہ جو میں دیکھتا ہوں ابھی حمزہ علی عباسی بھی میرے ساتھ ہیں. حمزہ علی عباسی, آپ کے اوپر سنیں نوٹس آ گیا ہے اور آپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر, تو آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ بھی ایک بیان دے دیں کہ ٹی او آرز بنائی جائیں اور میری مرضی کے مطابق بنائی جائیں, اور اپنے آپ 6 ممبران کا اعلان کر دیں, کیونکہ سنت نواز شریف تو موجود ہے اس سلسلے میں, آپ کر سکتے ہیں یہ. ایک تو مبشر بھائی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ بحث یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ قانون بنایا گیا اور اس کے تحت جس طرح اب یہ
इंडिविजुअल्स को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, न्यूज सोर्सेज को नहीं कर रहे। क्योंकि लेट्स सपोज अगर कोई न्यूज गलत भी है तो उन न्यूज सोर्सेज को टारगेट करना चाहिए रादर देन कि वो इंडिविजुअल्स जो उनको कोट कर रहे हैं। इनकी अपनी हुकूमती एमपीए जब एक बात कह रही है हिना भट्ट साहिबा 3 अगस्त को कि जी इतने बच्चे गवाह हो रहे हैं, अपोजिशन के भी नहीं, अल्लाह का अजाब देखें कि अब वो कह रहे हैं कि जी हुकूमती एमपीए भी एक क्रेडिबल सोर्स नहीं है अगर वो कोई बात करता है। आपके ख्याल में हुकूमती एमपीए झूठ नहीं बोलते, एमएनए झूठ नहीं बोलते? ये सारा दिन झूठ बोलते हैं हमारे सामने। तो भाई फिर सबसे पहले नोटिस हिना भट्ट साहिबा को भेजिए, आसफा जरदारी ने ट्वीट की उसको भेजिए, मतलब वो मेरे खिलाफ ज्यादा पॉलिटिकल बड़े फिगर्स हैं जो वेबसाइट पे जितना आया। अच्छा फिर कहते हैं जी 900 नहीं 700 बच्चे गुमशुदा हुए थे, आपने गलत फिगर कोट किया। अल्लाह का खौफ करें, 700 भी गुमशुदा हुए, कहते हैं अगवा भी नहीं हुए गुमशुदा हुए, आपने ये क्यों लिखा अगवा हुए? ये तो हमारी पस्ती इखलाकी है, उसका अब हद पहुंच चुकी है। अयाज सादिक साहब के बयान के रद्द अमल में मैंने ये लिखा था जब उन्होंने कहा कि बच्चों का अगवा होना गुमशुदा होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और असल में अल्लाह का करम है, उनके अपने बच्चों को कुछ नहीं हुआ ना जी। और मुबशिर भाई उसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी नहीं 900 क्यों लिखा आपने, मतलब पूरी बात साइड पे 900 क्यों लिखा? चलें मैंने लिख दिया, जमहूरियत में जमहूरी हुकूमत का काम होता है उसकी वजाहत करें, बार बार करें, 10 दफा करें। ये क्या बात हुई कि आप इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजना शुरू कर दें कि जी अब आपने कुछ कहा या माफी मांगे या हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे जिसकी सजा 3 से 7 साल है। फिर इसको जमहूरियत कहना प्लीज छोड़ दें। आज हम सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हम एक किंगडम में रहते हैं और उसके ये कवानीन है, मैं भी चुप कर जाऊंगा। लेकिन जब तक हम एक बोगस नारा जमहूरियत का लगा रहे हैं, सॉरी मैं अपना ये राइट एक्सरसाइज करूंगा, ये मेरा राइट है। और अगर ये क्रेडिबल न्यूज नहीं है आप आए एक्सप्लेन करें उसको, गवर्नमेंट का काम है जवाबदेह होना, गवर्नमेंट का काम है एक्सप्लेन करना। और अगर आपने एक्शन लेना है तो न्यूज सोर्सेज को लीजिए एक्शन, जिन्होंने बात की अपनी एमपी के खिलाफ एक्शन लीजिए जिन्होंने बात की। आप भी तो ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं ना, जब हुकूमती नुमाइंदा कोई बात कहता है तो आप कहते हैं कि जी ये देखें जी न्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं वो तो उन्होंने वैसे ही कह दी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी उन्होंने मेरे से वैसे ही अवान में माफी मांग ली कि जी वो मुझे गलती लग गई थी तो उनको नोटिस नहीं भेजा। ये मयार है हमारी इखलाकी पस्ती का कि बच्चों के मामला अगवा का, गुमशुदगी का जो भी था वो पसे पुश्त रख के आपने इशू क्या बना दिया साइबर क्राइम बिल पास करके कि हाउ डे यू से कि जी 900 बच्चे अगवा हुए थे। आपने फियर फैला दिया, आपने दहशत फैला दी, ये हालात हो गए। तो बिन हालात में आई एम सॉरी, मैं तो किसी एंगल से माफी नहीं मांग रहा, जो करना है कर लें, अब क्या हो सकता है। मेरे साथ ही रहिएगा हमजा। आप भट्टी साहब सुन रहे हैं? बिस्मिल्लाह, वो सही कह रहे हैं हमजा साहब। गुजारिश है, अल्ताफ सैन मुहिब्बे वतन है, मैं और आप तो दहशत गर्द हैं, इसमें कौन सी बात है? अच्छा हाँ, सही, फिर मुहिब्बे वतन हुआ, वो मुहिब्बे वतन है, असफंद यारवली मुहिब्बे वतन है। गुजारिश ये है कि अमीर का बच्चा चले जाए तो अगवा होता है, गरीब का आदमी तो बेचारा चले जाता है ना, सैर करने चले जाता है, अगर उसके घर से भाग गया दिल निकाल के कोई उजाब भेज दे तो वो वैसे ही चेंज करते हैं जैसे ऑयल गाड़ी का चेंज करते हैं। तो गरीब का बच्चा अगर अगवा होता तो कौन सी बुरी बात है यार? वो लापता हो गया, गरीब था, भूख से मरना था, कोई दहशतगर्द ले गया होगा, उसको दहशतगर्द बना लेगा, कोई उसके उजाब बाहर भेज देगा। तो लिहाजा मैं समझ रहा हूँ हुकूमत, हमजा साहब ने गलती की है, हुकूमत बिल्कुल ठीक है। गरीब के बच्चे अगवा नहीं होते, वो गुम जाते हैं बेचारे। अमीर आदमी का बच्चा घर से बाहर सैर करने भी जाए तो हाय अल्लाह लेट हो गया, ढूंढो, वायरलेस चल जाती है, बिल्लियाँ कुत्ते जानवर बच्चे की तलाश में निकल जाते हैं, पूरी की पूरी हुकूमत आ जाती है। आपके जो हुक्मरान है उनके पोतों के पीछे 6-6 गाड़ियां चल रही हैं। गुजारिश ये है, इस मुल्क में आप पैदा हुए क्यों? आप अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो आप दहशत गर्द हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। भारत देखना मुहिब्बे वतन है हमारा। अल्ताफ सैन साहब में मुंह चकदई जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो वो इंडिया में पाकिस्तान के हीरो के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो हीरो है ना। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है भाई, ये तो कानून है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। हमजा साहब को फांसी लग देनी चाहिए, मैं और आप इसका जिक्र करें, हमें भी फांसी लग जानी चाहिए। क्यों जी कई साहब? देखिए इन्होंने गरीबों के बच्चों का जिक्र किया और ये बात उन्होंने ठीक पॉइंट आउट की थी। क्या ठीक पॉइंट आउट? गरीब के बच्चे की हैसियत क्या जिक्र कर रहे मैं ये कह हैं? रहा हूं टाइम वेस्ट कर रहे हैं शो में आप। 15 लाख बच्चे तो सड़कों पे रहते हैं। आपको अफसोस होना चाहिए, आप गरीब के बच्चे का जिक्र कर रहे हैं शोज में, प्राइम टाइम में, लोगों का मूड खराब हो जाएगा। आप किसी अमीर आदमी के बच्चे की बात बताते नहीं, अमीर आदमी का बच्चा हुआ होगा तो पूरी मशीनरी हिल जाएगी, दुनिया हिल जाएगी। नहीं वो तो वैसे ही बाहर रहते हैं ना जी, वो तो 14 साल की उम्र में जो हैं विजिट्स हैं, इतनी रकमें कमा लेते हैं माशाल्लाह। बात ये है कि बच्चों, गरीब बच्चे की क्या बात करते हैं? ये आपकी इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट है, 15 लाख बच्चे सड़कों पे रहते हैं।
3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते जो हमारा आला तालीम का निज़ाम है, खुद इलाज आप 80% लोग नॉन साइंटिफिक इलाज करवाते हैं। तो मेरे ये मुल्क गरीब का नहीं है। अभी आप कराची, मुझे ख्याल था कि आप कराची की बात करेंगे, चलें वो भी कराची में 77% लोग जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे पानी माफिया देता है, बिजली वहाँ पे माफिया लेके आ। मैं अभी कराची से एक दोस्त से बात हो रही थी, तो बेसिकली रियासत ने अपने फरीजों से हाथ खींच लिया है। और आज की सियासत की लड़ाई ये है, आज क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लोग पीछे जा रहे, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं करता। अभी अजीब अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ये जो लोग हैं। तो बेसिकली आज दुनिया भर में फरीजा आवाम का ये है कि एंटी पीपल जो स्ट्रक्चर्स काबिज हो चुके हैं रियासतों पर, उनको ओवरथ्रो करे। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, बड़े मुबशर साहब, मजे मैं काजी साहब से फोन देखिए, 50,000 से जायद लोग सड़कों पे सोते हैं सिर्फ लाहौर में, 50,000 से जायद। अगर कोई ट्रक उनको कुचल देता, वो क्यों पैदा हुआ, क्यों सड़कों पे सोए? वो इतने बदनसीब है कि अपना घर भी नहीं बना सके, 100 अपनी लोगों छत को भी तो नहीं बना मॉलटाउन सके। में गोली मार दी, उसका हाँ? क्या हो गया? नहीं, वो क्यों, वो मरना चाहिए था उनको, उनका क्या कसूर है? गोली बच लगी क्यों मर गए गए, जो? वो हाँ। कैसे इंसान है जो गोली से मर गए? यार ये तो ज्यादती है ना। अब हुक्मरान गोली भी ना चलाए और आप मर भी जाओ, फिर उनको कसूरवर ठहराओ। क्यों मरे हैं वो? अल्लाह से जिंदगी बढ़ा देते। अब ठीक है ना, हुकूमत ने सही किया ना, उस पर्चे पे कोई अमल तो किया नहीं, कोई तफ्तीश हुई है? मेरी गुजारिश है, हुकूमत को तो 20 करोड़ अवाम का कत्ल माफ है, वो कर रहे हैं। हम पहचान नहीं रहे, हम जान नहीं रहे, हम अहमक हो गए हुए हैं। हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वो तो कत्लो गारत में कोई कसर नहीं छोड़े। अगर रब ने जिसको सांस दिया वो ले नहीं सकते। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हुकूमत को ये आइन में तरमीम होनी चाहिए। जैसे पैसे बचाने की अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत जो रोजाना 2-4 हज़ार बंदा मार सकती है, गरीब, फकीर, मजदूर, बेबस, किसान, शक्ल से लाचार। उनको अच्छे नहीं लगते, नहीं, अकल से नहीं अच्छे लगते। अब तो वो माशाल्लाह उनको लाइसेंस मिल गया ना इंसानों को कत्ल करने का। लिहाजा हुकूमत ठीक कर रही है, लगे रहो मियाँ साहब, लगे रहो। हमजा अली अब्बासी रहे हैं कि पैनमा के ऊपर कोई कानून नहीं बन रहा, लूट खसूट के ऊपर कोई कानून नहीं बन रहा, स्विस बैंकों में से पैसा लाने के लिए कोई कानून नहीं बन रहा, गद्दारों को सज़ा देने वाले जो कवानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन साइबर लॉ बिल और फिर ये सारा कुछ ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की जायज़ तनकीद भी ना की जा सके। मुबशर साहब, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने नीचे सिग्नेचर्स देखे जो एडिशनल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन है पंजाब के, और मुझे एक चीज़ से हैरानी भी हुई कि माशाल्लाह एक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी होती है ना, एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है, वो इस बात पे हरकत में आ गई कि एक इंसान हमजा अली अब्बासी ने 900 बच्चों का जिक्र क्यों किया। काश अगर यही एफिशिएंसी दूसरे मामलों में आती तो हमारा मुल्क आज इस नहज पे ना पहुंचता। और मेरा ख्याल है भट्टी साहब या जो आप बातें कर रहे हैं इस पे भी आपको इजीली नोटिस आ सकता है। अब आने दें, मुझे नोटिस आते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे जब मरियम सफदर के जो ट्रोल्स हैं, पेड ट्रोल्स हैं, जब वो गालियां लिखते हैं और मुगल्लज़ात झूठ मेरे मुतल्लिक लिखते हैं, मैं FIA को कंप्लेंट भी कर दूं, एक्शन नहीं होता। मेरा अकाउंट भी हैक हो जाए, पर्चा भी हो जाए, उस पे एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मरियम सफदर के बाप की चोरी पॉइंट आउट करूं ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो इनको तकलीफ हो जाती है, इनके पेट के कीड़े सांप बन जाते हैं और वो अफसार आलम को इस्तेमाल करते हैं। अफसार आलम साहब, आपने दोबारा जो नोटिस भेजा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपने बदनीयती के ऊपर भेजा, आप में हिम्मत है, हौसला है, तो यहां बैठे आके और जवाब दें, सामने आके अवाम के आगे जवाब दें, आपने किन बातों पे नोटिस भेजा है। मैं भी आपको एक नोटिस भिजवा रहा हूं अनकरीब, उसको खोलने के लिए तैयार रहिएगा। जी हमजा। मुबशर भाई, एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। हजरत यर्मिया एक अल्लाह के पैगंबर आए थे जिनको बाइबल में अंग्रेजी में जेरेमाया कहा जाता है, और नसर उस वक्त बादशाह होता था इराक और बनी इसराइल का। तो वो पूरी कौम जो है वो इखलाकी पस्तियों में मुब्तला थी, वहाँ पे रिश्वत आम थी, वहाँ पे झूठ आम था, वहाँ पे बद इखलाकी आम थी, लेकिन वो सारी कौम इस चीज पे मुत्तफिक हो चुकी थी कि हमने बख्त नसर के खिलाफ जो है तहरीक चलानी है और वो बड़ा जालिम है। तो हजरत यर्मिया आए जरमाया और उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ तहरीक चलाने से पहले अपनी इस्लाह कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, अल्लाह की रहमत खुद ही बरसेगी। हम ऐसी कौम है कि जो ऊंट निगल जाते हैं लेकिन जीरे पे फंस जाते हैं, कि हमारा ड्यूटी है ये कि हम अपने राइट्स को डिफेंड करें और हम अपनी गलतियां रियलाइज करें कि शायद हम इतना अरसा चुप रहे, हम आज तक करप्शन के लिए बाहर नहीं निकले, कसूर के बच्चों का वाकया हो गया, हम बाहर नहीं निकले, बच्चों की ये किडनैपिंग्स हो गई, हम बाहर नहीं निकले,
تو 2-3 دن بات ہوتی ہے. جیسے اب یہ میرے اوپر یہ پروسیکیوشن کا ایک لیٹر آیا, شاید 2-3 دن بات ہوگی, 4 دن بات ہوگی, ہفتہ بات ہوگی, پھر ہم سارے چپ کر کے اور چیزوں میں لگ جائیں گے کہ بالی ووڈ کی ایک فلم آ گئی ہے یا پاکستان میچ جیت گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پس پشت چلی جائیں گی. تو یہ موقع ہے جی کہ ہم اگر اپنے رائٹس کو خود ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرے گی. کر رہی ہے نا جی, گورنمنٹ ایکسپلائٹ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کا جو پالتو لوگ ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن مشہور کہاوت ہے کہ ظالم کو ظالم مظلوم بناتا ہے. جب تک آپ مظلوم بنے رہیں گے تو ظالم بھی ظالم بنا رہے گا. تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار اٹ. اور آپ میڈیا کے تھرو اسٹینڈ اپ کر رہے ہیں, میری جو آواز ہے میں اسٹینڈ اپ کر رہا ہوں. حمزہ صاحب آپ سپر سٹار ہیں اس ملک کے, اور آپ کے کروڑوں فینس ہیں, آپ انشاءاللہ ڈٹے رہیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. عارف حمید بھٹی, قاضی سعید اور حمزہ علی عباسی میرے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, یہ کیا خبر ہے کہ 120 سیاستدانوں کی کرپشن کے پروفس دیے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو, اور وہ ایکشن نہیں لے رہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جلدی میں کام کیا. 120 تو بہت کم ہے. اگر اس میں پوری اسمبلی میں 20 نہ ہو تو یہ خبر تھی. تو دوسری بات میری گزارش یہ ہے کہ کیا 8 سال ہو گئے ہیں, کوئی ایک آدمی بتائے, کوئی ایک آدمی اور طاقتور جس کو سزا ملی ہو. آپ کے پرائم منسٹر پر کیا ایلیگیشن ہے 5 مہینے سے کہ وہ اربوں روپے باہر لے گئے؟ اس کا جواب کسی ادارے نے ان سے مانگا؟ ابھی آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو سمجھ ہو جائے گا. پاکستان میں کرپشن برائی ہے ہی نہیں. اگر آپ دکیا نوسی ہیں, آپ وقت کے ساتھ ترقی نہیں کر رہے تو اپنی اصلاح کریں. اگر حکومت کرپشن کر رہی ہے یا کوئی طاقتور کر رہا ہے, یہ اس کا حق ہے, کیونکہ 20 کروڑ بھیڑ بکریاں ہیں, جانور ہیں, چند خاندان مسلط ہے, اور ہمیشہ جہاں بادشاہت ہوتی ہے غلام ہوتے ہیں. غلام ترقی کرنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ اگر غلام ترقی کر گئے تو ان سے سوال پوچھیں گے, سڑکوں پہ آ جائے گے. تو لہذا غلامانہ سوچ انگریز نے اتنے اس خطے پہ نوکری کی ہے, ہم نے آزاد نہیں ہونا. لہذا میرا خیال ہے کرپشن کے خلاف آپ پروگرام بند کریں اور مودی کی فیور میں پروگرام شروع کریں. محمود جذبے کے ویر کو لے کے جائیں, بہت پسند آئیں گے. یا اپنا گیس کے فیور میں کروں گا, وہ ان کو پسند آئیں گے. وہ اپریشیشن لیٹر آئے گا آپ کو. پھر دیکھیں یہ اگلے کی تو آپ فیور کر رہے ہیں. اسی این جی او کے وہ روئے رواں بھی رہے ہیں. گزارش یہ ہے دیکھیں کہ ادھر اس بیچارے اداکار پہ آ گیا ہے. ہماری بہن مریم, اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگی دے, انہوں نے کہا نہیں اللہ نے آپ کا اپنی بات کریں, میری نہ کریں, ہماری نہ کریں. وہ پی ٹی آئی میں چور بھرتی ہیں. میری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے, میرے بیٹے کے لیے. میری گزارش یہ ہے کہ بتائے نا, ان کا یہ ٹویٹ کیوں نہیں آیا کہ الطاف حسین نے غلط کہا ہے؟ وہ کیوں آئے گا؟ پرویز رشید کس کا میسج لے کے گیا تھا وہاں پہ؟ یار دیکھیں, وہ اتنے عرصے سے ہیں, وہ سازش بھی نہ کریں, وہ آپ کو خریدے بھی نہ, تو کیا کریں, کیسے حکومت کریں, کیا کریں, کیسے حکومت کریں؟ دیکھیں یار, جس طرح وہ حکومت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کریں گے. آپ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو ایک یہاں کی رولنگ ایلیٹ ہے, جو اس کے مفادات ہیں وہ عین ضد ہیں. مجھے یہ 120 افراد کے متعلق بتائیں. 120 افراد کے متعلق چھوڑیں یار, 20 پکڑ کے دکھا دیں, 3 پکڑ کے دکھا دیں. 120 تو آپ نے بڑی لمبی تفصیل دے دی آپ نے. بات یہ ہے کہ قانون کی وہ تعریف آج بھی ٹھیک ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح جو صرف چھوٹی مکھی کو پکڑتا ہے, یہ پاورفل تو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں, اور یہ ٹھیک کہتے ہیں. آج بتائیں کوئی ادارہ ہے ایسا, ایک ڈکٹیٹر نے پکڑ کے لایا بندے, انہوں نے سارے ادارے فارغ کر دی. آج آپ کے کوئی ادارہ جو ہے, کوئی مجھے بتائیں, ابھی بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ نے منگوائی تھی لسٹ. ابھی کچھ عرصہ پہلے جناب وزیر داخلہ صاحب تشریف لائے تھے, لاہور ایف آئی اے کو جھاڑ کے گئے پرانی تھوڑی بات 6-7 مہینے کہ یار آپ کچھ کیسوں کا کرتے ہی نہیں ہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ دے آر انٹچیبلس اینڈ دے ول. اور دوسری بات, میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اس بات پہ کہ عوام اس لیے باہر نکلیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہٹا کے جنگی ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیں. شو دی پیپل ریئل چینج. انہیں بتائیں کہ جناب آئیں گلے کٹوائیں, جس طرح آپ نے 68-69 میں کٹوائے تھے گلے. بار بار باہر آتے ہیں, بار بار دھوکے دیتے ہو یار ان کو, پھر کہتے ہو باہر نہیں نکلتے. اور جب اوپر جاتے ہو اسمبلیوں میں سودے کر لیتے ہو ان کے حقوق کے, پہلے ان کا خون بہاتے ہو گلیوں میں, اوپر جا کے بیٹھ کے پھر گفتگو محبت. آپ عوام کو بٹرے کرتے ہیں بار بار. اسمبلی ہی بٹرے کر رہی ہے نا, پھر اور کون کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ لوگ باہر ہیں, میں گن کے بتاؤں کتنی تحریکیں. حمزہ علی عباسی صاحب, کتنی باری لوگ باہر ہیں؟ جی اس کا حل یہ تو نہیں کہ باہر آنا بند کر دیں. اگر 10 دفعہ باہر آئے ہیں, 10 دفعہ دھوکا ہوا ہے تو گھر میں بیٹھ جائیں گے, تو پھر تو دھوکے دینے والے تو مطمئن ہو کے آپ کو دھوکا دیں گے کہ ان کے ریزسٹنس کے امکان ہی ختم ہوگا. تو یہ تو میرے خیال سے کہ بڑی ہی غلط اسٹریٹجی ہوگی کہ جی کیونکہ ہم اتنی دفعہ دھوکا ملا ہے تو اب ہم باہر نہیں نکلیں گے, یا ہم
इंडिफरेंट हो चुके हैं, तो अगर आप इंडिफरेंट हो चुके हैं तो आप तो टोटली 100% रहमो करम पे हैं उन लोगों के, जो आप पहले भी एक्सप्लॉइट करते रहे और आगे भी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, आप तो अभी की बात करें, मुझे 1947 से लेकर अब तक आप सवाए एक मेरा ख्याल है जुल्फकार अली भुट्टो के जिनको सियासी तौर पर फांसी दी गई, उसके अलावा को मुझे एक नाम बता दीजिए किसी पॉलिटिकल हाई सर्कल्स में या ब्यूरोक्रेटिक हाई सर्कल्स में, कोई 3 आप मुझे नाम बता दीजिए हमारी 69 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर जिनको करप्शन पे सजा हुई, जिनको मॉडल टाउन जैसे इंसिडेंट्स पे सजा हुई, या तो मैं ये मान लूं कि हमारे 69 ईयर्स जो हैं उसके अंदर कोई करप्ट एलीट था ही नहीं आज तक, सब ब्यूरोक्रेट्स ठीक थे, सब सियासतदान ठीक थे, पता नहीं मुल्क इस नहज पे कैसे पहुंच गया, या तो फिर बहुत कोई देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग विद आवर सोसाइटी के आज तक आप मुझे 3 नाम नहीं बता पाएंगे अमीर और पावरफुल लोगों के जिनको हमारे सिस्टम ने आज तक सजा दी, 3 नहीं बता सकते 69 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में। तो इस तरह तो सर आगे नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क ना चल। ये मुझे बताएं भट्टी साहब के प्रॉब्लम ये लगती है, मुझे लगता है कि जब भी अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई मूव चलाती है, सानिया APS हो जाता है, कोयटा हो जाता है, MQM हो जाता है और वो तवालत पकड़ लेता है। देखें, मेरी गुजारिश आपको मैं करने लगा हूँ, मैं इंडिया की सोच लेके मुझे कोई इक़्तिदार मिला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ किसी की नहीं, अगर मुझ पे बुरा वक्त आ रहा है और मैं इंडिया का एजेंडा ले के आगे जा रहा हूँ तो वो मुझे बचाने आएंगे। यार ये तो दोस्ती है ना, अब दोस्ती को गाली तो मत बनाए ना। अगर इंडिया का कोई दोस्त क्राइसिस में आता है, आपके इधर APC हो जाती है, कराची में हो जाता है, कोयटे में ब्लास्ट हो जाता है, क्या क्यों ना करे भाई, उनका दोस्त है। जब आपके दोस्त पे कोई प्रॉब्लम आएगी आप उसकी फेवर नहीं करेंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये तंग नज़रों का जहन है कि पाकिस्तान में तो नारा ही एक है, करप्टों का जो यार है वो ही सिर्फ जीने का हकदार है, बाकी छोड़े। इधर किस किस को ओहदे मिले हैं सरकारी, मुझे बता दें, उसकी क्या, उसका माजी क्या था, उसका हाल क्या है, उसको किस लिए ओहदे दिए गए हैं। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उन सबको आपने बैठा दिया उधर। मेरी गुजारिश है ना, आप इंडिया पे क्यों गिला शिकवा करते हैं? हमजा किसके पीछे निकले यार? ये तो आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र है आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, वरना मुझे खौफ था कि कोई अमेंडमेंट ना आ जाए। जमहूरी हुकूमत है ना, ये ला सकती है कुछ भी, भाई सोच है, अवाम की राय से आए हैं वो, तो अल्लाह ने तो बड़ा करम किया कि आखिरी नबी को भेज दिया, वरना कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाती आप क्या कर लेते? आपने ये नहीं मानी अमेंडमेंट, तीसरी दफा वज़ीर आज़म होगा, उसका 20 करोड़ अवाम को फायदा हुआ, एक आदमी को नहीं हुआ। आप ब्लेम कर देते हैं हर बात में, जी एक आदमी के लिए हुआ। 20 करोड़ अवाम पहले 2 दफा वज़ीर आज़म रह चुकी है इस मुल्क की, तीसरी दफा अगर अवाम के लिए उन्होंने फैसला किया तो हमारे पेटों में क्यों रोड पर चल रहे हैं? अगर BA पास का किया तो 20 करोड़ अवाम पाकिस्तान के सदरों को फैसला हुआ है। तो लिहाजा गलत बात मत करें, पाकिस्तान में लूटने का हिस्सा बने, लोगों के बच्चे अगवा करें, अमीरों की गुलामी करें, इनकी खुशामद करें और बाकियों को मारे दाड़ या खुद 2 नंबरी से अमीर हो जाए तो सारे आपके गुलाम हो जाएं। बिल्कुल, इसमें तो तरक्की यही है, कामयाबी यही है। जितना मर्जी हराम खाओ, सूर खाओ, झूठ बोलो, 20 करोड़ अवाम से मुनाफकत करो कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं तलीम आम कर दूंगा, मैं लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा। कशकोल तोड़ने की बात हो रही थी, आज के दिन हमजा 65 करोड़ डॉलर दोबारा वर्ल्ड बैंक से उधार मिल गया। अब पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पे आ चुका है, किसी भी दिन आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। गुड गवर्नेंस मुबारक हो। ये रियलाइज कराया ही नहीं जा रहा कि द मोमेंट यू रीच $90 बिलियन आप बैंकरप्ट हो जाएंगे ग्रीस की तरह। ये हमें बताया ही नहीं जा रहा, और ये सोशल मीडिया वो एक वाहिद फोरम रह गया था जहाँ पे आजादाना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी। तो बजाय इन लोगों ने उन पे क्रैक डाउन करने के जो मजहबी फिरकावारियत फैला रहे हैं, या जो कत्ल की धमकियां दे रहे हैं लोगों को, या जो औरतों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको सबसे पहले हमजा बासी नजर आ गया क्योंकि उसने उन गरीब के बच्चों की बात की थी जो भट्टी साहब मेंशन कर रहे हैं। इन लिहाज में, इन हालात में सर आप लोगों को सलूट है, आप लोग बैठे ये बातें कर रहे हैं नोइंग द फैक्ट के हुकूमत किस हद तक गिर सकती है अपने खिलाफ आवाजों को साइलेंस करने के लिए, और बाकी लोगों का भी यही फर्ज बनता है। हमजा भी मजीद गिरेगी, मेरी नॉलेज में इजाफा कर दें। सर मुझे रियलाइज हुआ है आज के वो कहते हैं ना कि द मोमेंट यू थिंक कि आप इससे ज्यादा नहीं गिर सकते नीचे, तो फिर भी आपको पता चलता है कि नहीं 10 फुट और जगह अभी रहती है। तो हमेशा जब हमने सोचा कि इससे ज्यादा हालात बदतर नहीं हो सकते, तो पता चला कि हम गलत थे और उससे भी ज्यादा हालात बदतर हुए। तो मैं तो सर पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी शायद और बड़े मरहले हैं जिसमें हुकूमत कोई ना कोई रास्ता जबरदस्ती ढूंढ लेगी कि मैं और किस हद तक गिर सकती हूँ।
क्यों सईद काजी से? इस इत्तेफाक ये जो $46 बिलियन हैं सी पैक के, ये कर्जा है और ख़ासा महंगा कर्जा है, और ये 1.5 से 2 साल में ये भी वाजिबुल अदा होगा। साथ पेरिस क्लब के सारे कर्जे हैं हुकूमत। और देखें बात ये है कि मैं फिर थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ, आप एतबार कैसे दिलाएंगे लोगों को? एक आदमी, आप मेरे लीडर हैं, मैं जान तली पे रख के बाहर आता हूँ आपके पीछे, तो आपको कुछ कम्युनिकेट करना होगा ना मुझसे। मैं एक मिनट, आप खुद लीडर हैं यार, एक फिक्र आप अपने हक के लिए निकले। मैं ये लीडर को छोड़ें आप, मैं यहाँ इसी जगह आपके यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था, और मैंने पीटीआई के एक लीडर से पूछा, मैं कि यार क्या फ़र्क है आपके और उनके? इकोनॉमिक पॉलिसी का फ़र्क होता है बेसिकली। आप इकोनॉमिक पॉलिसी पैरेलल लेके आते हैं कि ये इशराफिया की पॉलिसी है, हम आवाम की। वो कहते हैं नहीं कुछ तो हमारी जो है प्राइवेटाइजेशन पे और ये जो सारा 2 नंबर खाने का तरीका है, इस पे हमारा इत्तेफाक है। वाई शुड पीपल कम आउट एंड किल देम सेल्व्स? ऑलरेडी मिजरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं घरों में, बगैर बिजली, बगैर रोटी, बगैर पानी। अब चाहते हैं वो आके आपकी खातर छोटियाँ खाएं और फिर पता चले कि वारदात करके कोई और निकल गया। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको एक प्रोग्राम देना पड़ता है कि लोग आपके पीछे आ जाएं। ये एक साइंस है, और आ रहे हैं लोग बाहर। यार कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आज मैं देख रहा हूँ, मैं ये जेलम का मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। जब फवाद चौधरी पहले जीतने वाले थे तो आपने इलेक्शन पोस्टपोन करा दिए कि इलेक्शन कमीशन के अरकान पूरे नहीं है तो इलेक्शन नहीं हो सकता। एक मिनट, सिटिंग गवर्नमेंट आज भी वो आप पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंतजामिया फवाद चौधरी को हराने पे लगी हुई है, तब भी वो शेर आदमी जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वोट ले गया। मैं तक कि ये 70,000 वोट ले गया। ये कौन सा अपना इलेक्शन यार? माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी मेरी किताब में इलेक्शन जीत चुका है। मैं गुस्ताखी में आप टूर, इधर कायदे आज़म को ले आए जिंदा करके, मौजूदा हालात में उनको इलेक्शन लड़ाए लाहौर में, अगर उनकी जमानत जब्त ना हो जाए इस हुकूमत से तो गर्दन मेरी जिबा कर दे। कायदे आज़म को लाएं, उनकी तो खैर आबिद शेर अली जमानत जब्त करा देगा। नहीं ये सिस्टम रहे, आपका इलेक्शन का तरीकाकार ये रहे, यही ताकतवर लोग रहे। माजी में देखें नून लीग को 17-14 सीटें मिली हुई हैं, पीपल्स पार्टी को मिली हैं। या तो बस जिसके पास मशीनरी है वो इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो अपोजिशन की पार्टी है पीटीआई, वो उसको ज़बरदस्त खराज तहसीन देना पड़ेगा कि 1,000 1,500 वोट से आ रही है इस नामुसाइद हालात में। हमजा, अब अगर इलेक्शंस में हर वक्त ही रेगिंग होनी है तो हमारे पास क्या चारा रह गया स्वाय बाहर आके एहतजाज करने का? मुबशर भाई, वो कहते हैं ना कि जब झूठ को भी बार बार बोला जाए तो वो आपको सच लगने लगता है। तो रिगिंग अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम की वही आदत है कि जब मसला हॉट था तो हम सारे रिगिंग कर रहे थे, और जब मसला हॉट नहीं रहा तो लोग कहते हैं यार अच्छा रिगिंग के अलावा भी कोई बात कर लें, कोई नई बात करें। ये रियलाइज करते हुए कि जो 4 हल्के खान साहब ने, और ये मैं बड़ा एपॉलिटिकल होकर कह रहा हूँ, आप उनको ना भी सपोर्ट करें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि 4 हल्कों में से 3 जो है वो यार हमजा आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप असल में उम्र में बहुत छोटे हैं, जवान हैं, आपका खून गर्म है। मैं आपको बताऊं, पहले दिन से मैं बता रहा हूं, मैंने एविडेंस दिया, खुद एविडेंस दिया, वीडियो एविडेंस दिया कि साद रफीक ने धांधली की है। 149,000 जाली वोट उसके हल्के में पड़े। 149,000 वोट अगर अनअकाउंटेड हैं तो वो जाली हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। आप कितनी मासूम बातें कर रहे हैं हमजा। मौक़िफ़ की तायीद ही कर रहा हूँ कि आपके एविडेंस लाने के बाद और फिर जब कोर्ट्स और ऑफिशियल अथॉरिटीज ने भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब आपको पता चला कि 4 के 4 जो थे उनमें वोट्स वेरीफाई नहीं हो रहे, को पता ही नहीं है डले हैं नहीं डले, सही डले हैं गलत डले हैं, और ये था हमारा नेशनल इलेक्शन जिसपे हमारी कौम की तकदीर का फैसला हुआ था। इसके बाद भी अगर लोगों के दिल में सवाल उठता है कि यार क्यों रिगिंग करते हैं, तो फिर ये हम लोगों का कसूर है। और एक मुबशर भाई रिक्वेस्ट और है कि देखें, एक होती है कलेक्टिव रेजिस्टेंस के, यार अच्छा कोई पॉलिटिकल लीडर सामने आएगा तो हम उसके पीछे चलेंगे। एक होती है आप इंडिविजुअल तरीका निकालते हैं रेजिस्ट करने का। आपका तरीका ये है कि आप अपने शो पे बैठ के इस चीज के बारे में आवाज उठा रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। मेरा तरीका, और आप भट्टी साहब जितने हैं, कि आप लोगों का एक जर्नलिस्टिक करियर है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बड़ी लिफाफे की ऑफर्स आती होंगी कि आप हमारी साइड पे हैं गवर्नमेंट की, आपको भी करोड़ों अरबों मिल सकते होंगे, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। मेरे एंड पे मैं एक एक्टर हूँ, फिल्में बनाता हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं है ये चीजें। हमजा साहब, आपको मैं ऑफिशियली बता सकता हूँ कि मुझे मिनिस्ट्री की आ चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं। बट अल्लाह का करम है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, ये हमारा ईमान है, और जो हमारे रिस्क हमारे लिए लिखा हुआ है वो कोई माई कलाल छीन नहीं सकता। हमजा अली अब्बासी, आरिफ हमीद भट्टी और सईद काजी मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। जब आप ब्रेक पे थे तो मुझे एक मैसेज आया कि बौनों की बस्ती में कदावर शख्सियात के पैर काट दिए जाते हैं ताकि वो बौने हो जाएं। बटी साहब, मुझे ये हमजा अली अब्बासी पे जो केस हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इतनी क्राइम की बीट की है, एक FIR ही नहीं हुई, मुकदमा ही नहीं हुआ, तो प्रोसिक्यूटर कैसे आ गया बीच में? प्रोसिक्यूशन का बेसिक काम होता है मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस की मावनत करना। ये हिस्ट्री ही बनाए जा रहे हैं, कसम खुदा की अनबिलीवेबल काम हो रहा है। मेरी समझ से बाहर है। इस मुल्क में 100 लोगों को गोलियां मारना जुर्म नहीं है। प्रोसिक्यूशन जिसका लिंक ही कोई नहीं है मुकदमे के इंदराज का, पता नहीं क्या क्या कानून बनाते रहते हैं, उधर बैठते हैं, साजिशें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कानून बना देते हैं। अच्छा, क्या उन्होंने ये बताया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में कि हमजा अली अब्बासी, आपने कहा 900, हम आपको 700 की लिस्ट दे रहे हैं कि ये अगर इनके अलावा कोई है तो हमें बताएं? ये कैसे कह देंगे कि आपका फिगर गलत है? गुजारिश की है। उन बेवकूफ़ों ने ये समझा था कि हमजा साहब जो बच्चे अगवा होते हैं उनके घर के बाहर बैठे होते हैं, गिन रहे हैं, इनकी काउंटिंग गलत है। अब ये इनकी गलती है, इतने बच्चे अगवा हुए हर घर के बाहर, ये क्यों नहीं गए? इन्हें क्यों नहीं था पता बच्चे मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है जो हमजा ने रिपोर्ट तो वो जाहिल मुतलक है सारे। भाई आप बंदे तो गिनो, जाओ, मुझे पखर जाना चाहिए सुबह गाड़ी पकड़ के। अगर गरीब आदमी का या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप, एक बेचारे वो आपको, और दूसरा ये हमजा साहब हमारे भाई हैं, अदाकार है, हमारे ताज है, हमारे हीरो हैं, लेकिन ये फंदा दरअसल आप और हमारे लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आपको मैं दोनों हजरात को एक चीज़ दिखाता हूँ और नाजरीन दिखाता हूँ। खरा सच में आप बैठे हैं तो कोई हमने अंदर की चीज़ तो दिखानी है। आपको स्क्रीन पर एक एग्रीमेंट दिखाता हूँ जो IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नैब के साथ किया था ताकि नैब के अफसरान को कम कीमत पर प्लॉट अलॉट किए जा सकें, वो भी नैब की इन्वेस्टमेंट के बगैर। IB के अफसरान इंतहाई करप्शन में डूबे पड़े हैं, तभी हमारे और भट्टी साहब के फ़ोन टैप कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। और उनके खिलाफ जिसने कार्रवाई करनी है उस अदारे के अफसरान को सस्ते प्लॉट्स रिश्वत के तौर पर दिए जा रहे हैं। अगर नैब IB से माली फ़वाइद उठाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? उनकी करप्शन पकड़ेगा कौन? 12 अगस्त 2016 को एडिशनल डायरेक्टर नैब तारिक महमूद भट्टी ने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि IBECHS अपने मुलाजमीन के लिए इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी बना रही है, जिस पर उन्होंने नैब मुलाजमीन को इसमें शामिल होने का कहा। नैब हेडक्वार्टर्स की तरफ से इस प्रपोजल पर इत्तफाक कर लिया गया और IBECHS ने कहा नैब के और दूसरे तमाम मुलाजमीन के लिए टर्म्स और कंडीशंस एक जैसी ही होंगी। और ये बात साफ तौर पे कह दी गई कि स्कीम IB की है और नैब को सिर्फ सहूलत दी जा रही है। नैब हेडक्वार्टर्स इसके लिए कोई फंड नहीं देगा, लेकिन नैब मुलाजमीन अपने ज़ाती अकाउंट से इन प्लॉट्स की अदायगी कर सकते हैं। ताहम नैब के रेगुलर मुलाजमीन इस कीमत के तहत इसमें नामजद हो सकते हैं। प्लॉट्स, टोटल कीमत, एडवांस रकम, किसकी रकम 3 महीने के बाद, ये सब आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाया। रकम की अदायगी का तरीका जो है वो 15% एडवांस, बाकी 11 अक़सात में देनी होगी। और जबकि अगर इस हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स की असल कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो 60-30 का प्लॉट जिसकी कीमत इस लेटर में 20,75,000 दी गई है, इसकी असल कीमत जो कि इनकी अपनी वेबसाइट पर दी गई है वो 30 लाख से 36 लाख के दरमियान है। और 70-35 का प्लॉट जिसकी कीमत इस खत के ज़रिए 27,50,000 दी गई है, इसकी असल कीमत 57 लाख के तक है। 40-80 का, इसी तरह 50-90 का, 75-120 का प्लॉट जो है वो उसमें लाखों रुपए की छूट इसमें दी गई है। और ये सब प्लॉट्स की वो कीमतें हैं जो आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट करके चेक कर सकते हैं। और एक अहम बात यह है कि नैब के अफसरान को जो प्लॉट्स दिए जा रहे हैं वो ज़्यादातर B ब्लॉक में हैं और शुरू के ब्लॉक्स मेन लोकेशंस पर हैं और फिर इनकी कीमतों में 2 मिलियन से ज़्यादा का फ़र्क है। क्या ये नैब को खुश करने का एक नया तरीका नहीं, ताकि नैब IB के अफसरान जो कि इनके DG IB और जॉइंट डायरेक्टर जनरल फ़हद असद के ज़ेर असर काम कर रहे हैं, इन करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जा सके? भट्टी साहब, अभी मोहतरम हमजा साहब ने ये फरमाया था कि कोई 3 नाम बता दें, कोई 3 नाम जिन ताकतवरों को सज़ा हुई हो। गुजारिश ये है, आपके मौजूदा सिस्टम में रहकर मेरी एक ही गुजारिश है, करप्शन बुराई ही नहीं है भाई, इसमें क्या बुराई है? काजी साहब, ये ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, यही धंधा तो चल रहा है वतन अजीज़ में। सारे इदारे प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। मुझे बताएं ना, जो अगर आप देखें ये इससे पहले जो
ایون ورکرز کا فنڈ تھا وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. تو اصل میں یہی کام چل رہا ہے. اور یہاں پر ایک چیز باور کروائی جا رہی ہے اوپر کی جو ہے جو سب اداروں کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ تصور پختہ کیا جا رہا ہے. حمزہ علی عباسی, کیا یہ جرم نہیں ہے؟ سر جرم تو ہے 100%, کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اب پکڑے گا کون اگر نیب کے افسران یعنی اتنے مراد اگر لیں گے تو نیب نے تحقیقات کیسے کرنی آئی بی کے اوپر, مجھے یہ بتا دیں. سر نیب, آئی بی, ایف آئی اے, ہم ساروں کو یہ ایک عمومی بات پتہ ہے کہ یہ افیکٹو ادارے اس طرح نہیں رہے. اور میرا خیال ہے جو آج کل بھی تھوڑی بہت اکاؤنٹیبلٹی کسی کی برائے نام بھی ہو رہی ہے, وہ بھی پتہ نہیں کس حکم کے تحت کون حکم دے رہا ہے ہو رہی ہے, ورنہ ہمارے ادارے اس قابل نہیں ہیں. اور ہماری 69 سالہ جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ رہی ہے. لیکن اب سر اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا. اب جیسے وہ کہتے ہیں نا وین انجسٹس بیکمز اے نارم تو ریزسٹنس بیکمز اے ڈیوٹی, اور ہر بندے کو انڈیویجولی ایفرٹ کرنی چاہیے. کلیکٹیو ایفرٹ تو چلے اللہ کرے گا جب کوئی لیڈر ملے گا ہمیں, یا متفق صاحب ایک بات, ایک تو یہ تو قسطوں پہ دیا جا رہا ہے نا. آپ کو پتہ ہے جو چائنا سے آپ نے یہ اورینٹ ٹرین کے لیے پنجاب بینک سے لون لے کے دیا ہے, اس کا بھی سود ہم دیں گے. جو چائنا نے دیا پیسہ اس کا بھی ہم سود دیں گے. تو یار ادھر کھربوں روپے بانٹ رہے ہیں. آپ کی ملک حکمران اس کو کرپشن نہیں سمجھتے, آپ اس بات پہ تھوڑا سا کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ یہ تو پھر قسطوں پہ ہے. یہ صبح آپ ان کے لیے 2 پروگرام کریں, صبح پی اے کے چیئرمین ہوں گے, بچوں والی بات کری جا رہے ہیں. اب یار ایسے ہی بیچاروں کو ڈانٹ رہے ہیں آپ, بری بات ہے. اعظم سیکل صاحب کس کہاں جائیں گے جو اپنا 4330 لے لی ہے, وہ ان کا کمیشن تو اور یار آپ کو کہیں ایمبیسیڈر بنا دیں گے, ہمارے پاس کم ہے چیزیں سرکاری مال لٹانے کے لیے. 100 لوگوں کا خون پلا دیں گے آپ کو, ایک نیا بلڈ بینک بنا دیں گے غریبوں کو مار کے. خون پینے سے انسان ذرا جاندار ہو جاتا ہے. شیر کیوں انسان کو کھاتا ہے؟ اس کا خون اس کو طاقتور کرتا ہے. تو حکمرانوں کو بھی بیچاروں کو اگر خون منہ میں لگ گیا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ اپنی لائن چینج کر لیں. عارف حمید بھٹی, قاضی سعید صاحب, حمزہ علی عباسی, لوگوں کا تو شکریہ. لیکن میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی کبھی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ کوئی پروگرام جس میں کرپشن کوئی بے نقاب نہ ہو رہی ہو. اخبارات میں, مختلف اخبارات میں کالمز کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے پن پوائنٹ نہ ہو رہی ہو, لیکن مجال ہے کہ کوئی ایکشن ہو جائے ماں سوائے اس آدمی کے خلاف کہ جو حکومت کا منظور نظر نہ ہو. آج الحمدللہ ایگزیکٹ اور بول کے کیس میں شعیب شیخ اور وقاص عتیق کی فائنلی بیل ہو گئی, اور ان کے خلاف ایک بھی جعلی ڈگری ثابت نہیں ہوئی جس کا اتنا واویلا کیا ہوا تھا. ایک بھی کمپلیننٹ پوری دنیا میں نہیں آیا, اس کا اتنا واویلا کیا ہوا تھا. مجھے صرف کوئی یہ سمجھا دے کہ اس طرح سے 30,000 افراد کا جو چولہا بند کیا گیا تھا اور جو ان کو بے گھر کیا گیا تھا, اور 4 سے 5 بلین کا اس ملک کو نقصان پہنچا دیا گیا, اور اس کے علاوہ بلینز آف ڈالرز کا جو ایکسپورٹس کے اندر نقصان پہنچا دیا گیا تھا, اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہے, یا یہ سب کچھ مادر پہ در آزاد ہے؟ انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.